अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये थर्ड वीडियो है एनर्जेटिक्स का E2 का टॉपिक्स है। वी बीन डिस्क्राइबिंग इंथाल्पी चेंजेस। अब इंथाल्पी चेंजेस में आयोनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। ये डेल्टा एच स्टैंडर्ड I1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। we can define this, the enthalpy change under standard condition. Remember, this is the STEM definition that we can add this to all. When यहाँ से फिर 1 mole 1 electron from each atom, 1 mole gaseous atoms is removed to make 1 mole of gaseous plus 1 ions. अब देखिए, अगर इसको आप 1 मोल लें, ठीक है ना, तो 1 मोल का मतलब क्या है कि 6.02 into 10⁻23 एटम्स and 1 electron from each atom is removed. It means 1 mole of electron we will have 1 mole of gaseous ions, ठीक है ना। ये सारा 1 है इक्वेशन में। तो ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। अब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में जो लेफ्ट साइड पे है इक्वेशन में 1 mole of gaseous atoms है। Now each atom will lose 1 electron. It means 1 ion would be X plus 1. And since it is 1 mole, the number would be according to Avogadro's constant, that is L. That is L. अब देखिए सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी क्या है। देखिए +1 आयन, हम इसको लेफ्ट पे रखेंगे कि ऑलरेडी वी हैव +1 आयन। नाउ this is further ionized. That ionization energy would be 2, second ionization energy, and we will get 1 mole of gaseous ions plus 2. चार्ज क्या होगा? +2 होगा, +1 से +2 होगा। Again in this step 2, 1 mole of electron removed, यानी 1 electron from each +1 आयन। +1 आयन है, यहाँ पे एटम नहीं है, गैशियस आयन्स है, और ये भी गैशियस। रिमेंबर, स्टेट सिंबल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू विल टेक केयर ऑफ स्टेट सिंबल्स। ओके, सिमिलरली वी कैन थर्ड के लिए भी है, यही है 1 electron removed from each ion। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ लेफ्ट साइड पे है ना +2 आयन। +2 आयन is converted into +3 आयन, that is further oxidized। तो ये है आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी जो है ये है, आयोनाइजेशन एनर्जीज आर एंडोथर्मिक। आयोनाइजेशन एनर्जीज आर एंडोथर्मिक। रीज़न क्या है कि एनर्जी शुड बी यूटिलाइज टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एटम्स, देन फ्रॉम +1 आयन, देन फ्रॉम +2 आयन टू गो अप टू थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट एंथैल्पी चेंज इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन देखें, definition goes about the enthalpy change under standard conditions। ये तो हर एक के साथ वही स्टेम definition है। when 1 mole of gaseous ions are diluted with sufficient water, यानी they are mixed with water, water is added to 1 mole of gaseous ions to get them diluted, और ये exothermic है in both cases, whether the ions are positively charged या negatively charged। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल का सच ये है जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। वाटर मॉलिक्यूल, इंडिविजुअल वाटर मॉलिक्यूल ये है कि आप इसको जब देखेंगे, इसका बेंट वी शेप है, और ये है हाइड्रोजन, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन एंड्स है, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन एंड्स है। इस तरह डायग्राम में दिखाया गया है। सो नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, दे वुड बी लार्ज नंबर। Just we can show few to surround sodium ion. The negative end of water molecule pole, these poles are directed towards the center which surrounding positively charged sodium ion. This is
electrostatic force of attraction, releasing energy. And look at chloride. Chloride is well surrounded by water molecule in this fashion, where the water molecules hydrogen poles, which are positively charged, partial positively charged, are directed towards chloride ion, surrounding it electrostatic attraction between, and hence energy is released. So there are factors affecting the heat of hydration. कौन से फैक्टर्स हैं? नंबर 1, साइज या रेडियस ऑफ आयन. So we can, instead of describing in words, write mathematically that heat of hydration is inversely proportional to the radius. यानी अगर हम रेडियस को enlarge करें तो heat of hydration इसका जो अमाउंट है डिक्रीज़ होगा, कम एनर्जी रिलीज़ होगी. Heat of hydration is inversely proportional to the size या रेडियस. अब रेडियस को स्मॉलर करें, जितना स्मॉलर होता जाएगा तो उतने ही हीट ऑफ हाइड्रेशन की अमाउंट इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी, इंक्रीज़ होगा. चार्ज डेंसिटी ऑफ आयंस, मसलन सोडियम के ऊपर +1 चार्ज है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज है, एल्युमिनियम के ऊपर +3 चार्ज है. किसी ग्रुप में चार्ज डेंसिटी तो नंबर ऑफ़ चार्जेस सेम होंगे, लेकिन वो फैक्टर होगा रेडियस का, बिकॉज डाउन द ग्रुप, किसी भी ग्रुप में, ग्रुप 1 ग्रुप 2 की बात करेंगे, आयंस की जो रेडियाई हैं दे इंक्रीज डाउन द ग्रुप, एंड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल अक्रॉस द पीरियड दे डिक्रीज. लेकिन चार्ज डाउन द ग्रुप सेम रहता है, फिर वो रेशो डिक्रीजिंग रेशो होगा. आर का डिक्रीजिंग है तो ओवरऑल जो हमें इसको सम करते हैं दोनों का, चार्ज का डेंसिटी क्या है? चार्ज डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन. ठीक है. अब जब इसको दोनों को सम अप करते हैं, दोनों इक्वेशन को, तो हम एक ओवरऑल इक्वेशन लिखते हैं, डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई ओवर आर रेशो, क्योंकि ई यहाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी में है. ठीक है, नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर ये है, आर है, तो ये डिक्रीज़ हो रहा है, इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है. अच्छा, अब एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज when 1 mole of an ionic compound dissolved in sufficient water to make a dilute solution, indefinitely dilute solution, जितना dilute हो सकता है हम इसको dilute करेंगे. तो this can be endothermic or exothermic, ये क्योंकि different substances they dissolve endothermically as well as exothermically overall. ठीक है. तो ये heat of solution है. अब इसके साथ हम we move to the very important segment of this topic, energetics of syllabus A2, जिसको हम कहते हैं Born-Haber cycle, named after the scientists they worked on, Born and Haber. Application, this is actually application of the Hess's law है. Hess's law आप इसमें पढ़ चुके हैं, और Hess's law की सारी जितनी एनर्जी साइकिल्स हम बनाते हैं ये हेसेस लॉ की एप्लीकेशन है. वो एनर्जी साइकिल हम बनाते हैं, उसका इक्वेशन बनाते हैं. ठीक है. अच्छा, दिस साइकिल इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट द लेटेस्ट एंथैल्पीज. द एनर्जी साइकिल यूजेस एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी. इस साइकिल में लेटेस्ट एंथैल्पी के साथ साथ, क्योंकि ये स्टेप्स हो गए, लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, ये सारे जो है ना इंक्लूड होगा एक साइकिल में. अब देखिए ये साइकिल है, ठीक है ना, जिसमें हम अगर ये यहाँ से स्टार्ट लेंगे, एलिमेंट से स्टार्ट लेंगे, तो एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स
यहाँ पे गो थ्रू करें gaseous ions तक, and gaseous ions then combine to make ionic compound. ये 2 steps है, ये delta H1 standard delta H1 plus delta H lattice, ये एक स्टेप होगा, 1 स्टेप। इसका सेकेंड स्टेप होगा हीट ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम एलिमेंट्स ऑफ आयोनिक कंपाउंड। तो इसका इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। इक्वेशन ऐसी ही होगा कि लेटिस एंथैल्पी को हमने करना है। देखिए पहले मैं इसका इक्वेशन बना लेता हूँ, ठीक है। रेड का सही, पहले आप लिखेंगे टू स्टेप्स, स्टेप 1 स्टेप 2, इसमें इंक्लूडिंग ये डेल्टा H1 है, इट इंक्लूड्स सेवरल एंथैल्पी चेंजेस दैट लेटर ऑन वी आर गोइंग टू डू। और ये हो गया लेटेस्ट एंथैल्पी, लेटेस्ट इक्वल टू फॉर्मेशन। अच्छा, अब हम अगर इसको करेंगे तो लेटेस्ट एनर्जी को हमने कैलकुलेट करना है। हम इसको डेल्टा H1 को उस साइड पे लेके जाएंगे, वी विल हैव दिस इक्वेशन इक्वल टू डेल्टा H ऑफ फॉर्मेशन माइनस, ये अगर इसको हम फिर ब्रैकेट में बंद करेंगे, क्योंकि ये एक नहीं है, ये सेवरल स्टेप्स हैं, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है। तो इस बेस पे हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब देखें ये जो डेल्टा H स्टैंडर्ड 1 है, ये दिस इंक्लूड्स डेल्टा H ऑफ एटमाइजेशन, आयोनाइजेशन एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इसमें ये 3 इंक्लूडेड है। यानी जब हम एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे, ये देखें यहाँ पर देखें, वी स्टार्ट फ्रॉम एलिमेंट्स इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट्स एंड गोइंग टू गैसियस आयंस। तो पहले एलिमेंट्स को हम स्टैंडर्ड स्टेट से लाएंगे, वो डायटॉमिक है, ट्रायटॉमिक है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैसियस है, मल्टीपल एटॉमिक है, कोई भी है। पहले हम इसको गैसियस एटम्स इंक्लूड करेंगे, दैट वुड बी एटमाइजेशन। अब देखें ना, इसको अगर मैं इस तरह लिखूं, ये जो स्टेप है, यहाँ एटमाइजेशन आएगा, फिर एटमाइजेशन से एटम से हम निकालेंगे आयंस, ठीक है ना। तो ये होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, और आयंस 2 किस्म के होते हैं। इसको अगर आयोनाइजेशन हम करेंगे पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी करेंगे तो ये होगा जो हमारे पास आयंस आएंगे, ये होगा EA। ये आयोनाइजेशन भी सेवरल हो सकते हैं, 1 2 3, और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी 1 2 3, ये भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो इसमें ये इंक्लूडेड है। अच्छा, इस साइकिल पर ये नहीं करते, आगे हम जाते हैं, ठीक है ना। इसको डिलीट करें। अच्छा, अब बॉर्न हैबर साइकिल को यहाँ पे गैसियस आयंस हमने कर दिया, ठीक है ना। तो इसको जब हम करेंगे, लेबल करेंगे, ये है फॉर्मेशन ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड। एलिमेंट से है, ये कंपाउंड आयोनिक होगा, कोई भी होगा, कंपाउंड है, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड है, सब्सटेंस है, और एलिमेंट से बनता है। तो
1 mole of a substance formed from its elements under standard states, that enthalpy is called enthalpy of formation. तो ये enthalpy of formation है. इसके opposite direction पे we move, तो elements we get gaseous atoms, ये है atomization, enthalpy of atomization. यहाँ पर 2 enthalpies हैं, ठीक है. एक होगा, हाँ मैं इसको अलग स्टेप्स भी कर सकता हूँ. अगर ये होगा तो ये पॉजिटिव आयंस होंगे, ठीक है ना. पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस अलग होंगे, ठीक है. ये एक स्टेप में भी आप कर सकते हैं, 2 अलग स्टेप्स में भी कर सकते हैं, लेकिन पर्टिकुलर केस में 2 अलग स्टेप्स होंगे, ठीक है. तो इसको ये लिखेंगे यहाँ पे कैटायंस, कैटायंस. और यहाँ पर 7 अगर एटम्स हैं, गैसियस एटम्स हैं, तो 1 टाइप ऑफ एटम्स कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव आयंस, अदर एटम्स carried forward as such. Gaseous atoms, ठीक है. अभी ये सारा यहाँ 2 किस्म के हो गए. अच्छा, अब इसका जो हम बनाएंगे तो या इसको नीचे करेंगे क्योंकि ये अच्छा, अब ये फॉरवर्ड करेंगे, 2 टाइप्स ऑफ आयंस हो जाएंगे, ठीक है ना. तो ये सारे गैसियस आयंस होंगे, दोनों को इंक्लूड करके, दोनों को इंक्लूड करके, ठीक है ना. अच्छा, gaseous ions cations and anions. टेक्स्ट का मैथ्स गैसियस आयंस, कैटायंस एंड एनायंस. अब जब हम इसको कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो ये होगा लेटेस्ट एंथैल्पी ठीक है. ये होगा लेटेस्ट एंथैल्पी और ये एक साइकिल बन गया. अब इसको एक पर्टिकुलर केस के लिए जब हम करते हैं, ठीक है ना, कोई भी होगा, वो सोडियम क्लोराइड होगा, मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, वो कोई भी आयोनिक कंपाउंड होगा, तो हम इसके लिए इसको अच्छा, इसका इक्वेशन कैसे बनेगा. 2 स्टेप्स हैं, देखें. ये है स्टेप 1, यहाँ से शुरू होके यहाँ पर आता है, ये स्टेप 2 होगा. एंड अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ, स्टेप 1 इज इक्वल टू स्टेप 2.
अब इसमें लेटिस एंथैल्पी को हम रीअरेंज करके वी गेट द फाइनल इक्वेशन वेयर वी कैन कैलकुलेट द लेटिस एंथैल्पी। हाँ, यहाँ पर कोई भी है एटमाइजेशन को हम पूरी इस इक्वेशन में कोई भी अननोन एंटिटी होगी, कोई अन्य अननोन वेरिएबल होगा जिसको हमने कैलकुलेट करना होगा, बाकी की वैल्यूज़ को पुट करके वी कैन कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन, तो वो हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्राइमरीली बुनियादी तौर पर ये जो बॉर्नहेबर ने काम किया था इसके ऊपर, ये एक्सपेरिमेंटल नहीं है, ये कैलकुलेटेड है कि बाकी चीज़ें हमें अब हमारे पास हो तो इसको हम लेटेस्ट एंथैल्पीज़ को कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक एनर्जी साइकिल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है ना, इसी के ऊपर मसलन कि ड्रॉ द एनर्जी साइकिल, बॉर्नहेबर एनर्जी साइकिल फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड। Born-Haber energy cycle for मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। अच्छा, अब देखें, ये हम शुरू करेंगे। पहले तो देखें मैग्नीशियम क्लोराइड किस चीज़ से बनता है। हम लिखेंगे मैग्नीशियम एलिमेंटल फॉर्म में, स्टैंडर्ड स्टेट इसका सॉलिड है, क्लोरीन डायटॉमिक मॉलिक्यूलर है, गैसियस है, ठीक है। अब दोनों को इट्स अप टू यू, कलर बदलाओ। अच्छा, अब ये दोनों विल गेट MgCl2। अच्छा, ये एंथैल्पी चेंज है फॉर्मेशन। अब हम इससे दूसरी स्टेप पे जाएंगे। ये स्टेप 1 है। यू मे इंक्लूड लेबल दिस एज स्टेप 1। बस ठीक है, दिस इज स्टेप 1। Step 1. अच्छा, now we move in the opposite direction. Here, atomization of magnesium. Atomization of magnesium. So we get gaseous magnesium. अब अगर इसी स्टेप में मैं क्लोरीन को एज सच फॉरवर्ड करूं तो अगले स्टेप में क्लोरीन की जगह लेके एक स्टेप में करता हूं। अच्छा, एटमाइजेशन ऑफ, ठीक है, क्लोरीन। तो यहाँ वी विल गेट 2 मोल्स ऑफ, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई होगा जिसकी वैल्यू होगी एटमाइजेशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है। यहाँ अब इनको
ठीक है ये। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, आयोनाइज करेंगे हम मैग्नीशियम को। ये 2 स्टेप्स में आयोनाइज होगा। पहला स्टेप ये होगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम, और क्लोरीन को एज सच हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वी गेट magnesium +1, it should be gaseous, plus 1 electron plus 2 chlorine atoms, gaseous. Remember, state symbols are very important. You don't have to forget about state symbols. ठीक है। अच्छा ये होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी होगा, I2 मैग्नीशियम का। तो बाकी उसको हम कैरिड फॉरवर्ड करेंगे। We get मैग्नीशियम आयन गैसियस, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर 2 क्लोराइड आयंस। अच्छा, अब होगा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन। अब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन ये मल्टीप्लाई बाय 2 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 क्लोराइड है EA। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय 2 क्लोराइड आयंस। ठीक है, तो वी गेट मैग्नीशियम आयन गैसियस प्लस 2 क्लोराइड आयंस गैसियस। ठीक है, अब ये एनर्जी साइकिल बन गया जिसमें पूरे स्टेप्स हम गए। अब ये आयंस को हम क्या करते हैं, अब इनको कंबाइन करके दैट वुड बी द लेटेस्ट एंथैल्पी। ठीक है, ये लेटेस्ट एंथैल्पी हो गया। लेटेस्ट एंथैल्पी ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये एनर्जी साइकिल आप इसी तरह ड्रॉ कर सकते हैं, कोई भी गिवन है। अच्छा, डायरेक्ट कैलकुलेशन आ जाए तो डायरेक्ट कैलकुलेशन आप नहीं कर सकते। अगर एनर्जी साइकिल की दे हैव नॉट आस्क्ड टू ड्रॉ द एनर्जी साइकिल, लेकिन आपने रफ में जल्दी जल्दी से करना है पेंसिल से, सो दैट द स्टेप्स दैट यू विल इंक्लूड बाय इंसर्टिंग द गिवन वैल्यूज़ ऑफ ऑल द एंथैल्पीज़। तो प्लस माइनस में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। ये डायरेक्ट इक्वेशन रिमेंबर करना मुश्किल हो जाता है, तो इसके लिए ड्राइंग ऑफ द एनर्जी साइकिल इज़ इम्पॉर्टेंट, कि आप एनर्जी साइकिल को इम्पॉर्टेंट करेंगे। इंशाल्लाह बाकी आगे हम कंटिन्यू करेंगे।